LIC IPO. Why should we buy it? Is it really worth the hype? What do the industry experts have to say about it? And by the way, this is not a sponsored podcast. Monthly giveaway जारी है. Do go ahead, check out the details in this video description. Hey angels, welcome to my channel and to my podcast today. This is a compilation podcast wherein I have with me industry experts. They are going to throw light on many of the questions. क्या LIC IPO different है दूसरे IPO से? क्या सच में is it worth the hype? क्या हम या investors invest कर सकते हैं? कैसे invest कर सकते हैं? As an investor, क्या मुझे short term gains या long term gains के बारे में सोचना चाहिए? LIC IPO is prestigious for all Indians. Experts का इस पर क्या कहना है? So folks, in case if you guys are new to my channel and if you resonate with my high quality content and want to see interesting people, interesting message every week, to show your love and support by hitting subscribe and the all notifications button. Experts के जो भी सारे लिंक है मैंने इस सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है along with their credentials. Feel free to go ahead and check them out. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ और भी इंटरेस्टिंग डिटेल्स दिए हुए हैं along with the links. Feel free to check them out as well. इस पॉडकास्ट में मैं कुछ और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताऊंगी अबाउट LIC. मैंने अपने सोशल मीडिया पे कुछ सर्वे, कुछ पोल्स भी कंडक्ट किए थे, वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी. So watch till the end. Do not miss it. Let's get going. I have with me Dheeraj Malhotra, who is a Chief Master Trainer at Limra, India. Before moving into training and consultancy, he followed a career in pharmaceutical sales, life insurance, sales management, marketing and sales training. He also worked with insurance sectors majors, Max New York Life and Tata AIA Life in the capacities of sales manager, senior regional head, handling a team of 65 trainers and conducted motivational, behavioral, sales and recruitment training. चलिए जानते हैं कि धीरज के क्या ओपिनियंस है about LIC IPO. नमस्ते धीरज, कैसे हैं आप? जी मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं? गुड धीरज. सो धीरज, मैंने आपके बारे में एक सेपरेट वीडियो शूट किया है जहां पर मैंने आपके सिग्निफिकेंट क्रेडेंशियल्स के बारे में बात की है, पर मैं चाहती हूं कि आप भी आपके बारे में कुछ बताएं. एनीथिंग अबाउट योर लाइफ, योर जर्नी, योर प्रोफेशन दैट विल गिव अ फ्लेवर ऑफ योर लाइफ टू आवर ऑडियंस. Anything that you would like to speak about. Thank you very much, Namita ji. I mean, I am trying to help life insurance industry in India along with the organization that I represent, and my organization represents Limra in India. So we are trying to assist life insurance industry become more professional, become more systematic in its approach, become more organized in a way that we can help our customers, our clients much better. With respect to their financial planning. We are also enabling the life insurance industry on management part and strengthening their management in helping them recognize the good performing producers also, and also with a lot of research inputs which Limra takes immense expertise on for the last 106 years. So that's what we've been helping our people with Limra. On my personal front, I take immense pleasure in helping people become successful in life insurance industry. And on my personal front, I'm also assisting UNICEF on some leadership modules. And I'm writing an MBA course called Postgraduate Diploma in Individual Financial Planning, which there is much need of
And so as a member of India's first public sector skills university, I'm doing that. So that's what I'm doing currently, and here with you. Thank you. It's remarkable, Dheeraj. So Dheeraj, on that note, I would like to welcome you to our podcast, to our channel, and to our world of audience. Thank you for your willingness to come over here. My pleasure. Thank you. So Dheeraj, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ LIC के बारे में. तो LIC राइट नाउ ग्लोबली कहाँ स्टैंड करती है? आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? देखिए, LIC बहुत यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में. LIC नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन है. अगर हम नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स की बात करें तो LIC के तकरीबन आज की तारीख में 29-30 करोड़ से ज्यादा पॉलिसी होल्डर्स हैं, और इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, मच अहेड ऑफ चाइना लाइफ एंड पिंग एन ऑन नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स. पर अगर हम यही बात करें, which is remarkable, and ऐसा अभी से नहीं, कम से कम 20-25 सालों से LIC नंबर 1 पोजीशन पे है पॉलिसी धारकों की संख्या के हिसाब से. पर अगर हम ये बात करें कि प्रीमियम्स में LIC कहाँ है, तो LIC is as of the latest information which I have is 8th largest company on premiums in the world. Oh wow. So 8th largest है. ये वाव नहीं है क्योंकि नंबर 1 पॉलिसी धारकों में है, तो हमें टॉप 3 टॉप 4 में शायद होना चाहिए था प्रीमियम्स के हिसाब से भी. पर यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि LIC क्योंकि मास मॉडल फॉलो करती है, गांव तक में लोगों को काफी कम प्रीमियम में बीमा उपलब्ध कराती है, तो उनका जो एवरेज प्रीमियम पर पॉलिसी, जिसे टिकट साइज कहते हैं, दैट इज मच लोअर. पर वहां बहुत ज्यादा बढ़ाए जाने की उम्मीद है. और यहाँ पे मतलब ये कहा जा सकता है कि LIC अपनी नंबर ऑफ पॉलिसीज भी बढ़ा सकती है. उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स काफी हैं, करीब 12,67,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स थे एज ऑन लास्ट क्लोजिंग. और जो टिकट साइज, जिसे हम एवरेज प्रीमियम पर पॉलिसी कहते हैं, ये भी अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर्स को एनेबल करें इंडिविजुअल फाइनेंशियल प्लानिंग ढंग से कर पाने में, तो उनका एवरेज टिकट साइज हमने पाया कि काफी बढ़ता है. और आने वाले समय में, और पिछले कई सालों में बढ़ भी रहा है, और आने वाले समय में बहुत ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है. जैसे अभी हम देखें तो ICICI प्रूडेंशियल का टिकट साइज या एवरेज प्रीमियम पर पॉलिसी तकरीबन 1 लाख है, 98,000 एज पर दी डेटा. SBI लाइफ, जो दूसरी सबसे बड़ी बीमा कंपनी है LIC के बाद इंडिया में, उसका एवरेज टिकट साइज इज अबव 65,000. तो उस केस में LIC का अप्रोक्सीमेटली 20,000 है, जो कि बहुत पीछे है, और यहाँ बहुत बढ़ाए जाने की उम्मीद है. एक और दूसरा, अगर हम LIC की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें तो LIC has always been very very profitable organization for government of India, always contributing. पर यहाँ पे LIC की परसिस्टेंसी की बात करना जरूरी है. परसिस्टेंसी यानी कि कितने प्रतिशत बीमा धारक अपनी पॉलिसी का अगले साल का प्रीमियम देते हैं, वो काफी पीछे है. वो सिर्फ 67% है, जिसे हम 13th मंथ परसिस्टेंसी कहते हैं, कि 12 महीने बाद रिन्यूअल प्रीमियम ड्यू हो जाता है, उसके बाद 1 महीने का ग्रेस पीरियड. इस दौरान कितने परसेंट पॉलिसी होल्डर्स अपनी पॉलिसी का रिन्यूअल प्रीमियम देते हैं, ये सिर्फ 67% है LIC में. यानी 33% पॉलिसीज लैप्स हो जाती हैं. तो यहाँ LIC के पास प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने का बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि जहां तक मेरी समझ जाती है, मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया कि अगर आपकी 1% प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है तो आपकी वैल्यूएशन कंपनी की 5 से 7% बढ़ जाती है. तो आप सोचिए कि LIC के पास फ्यूचर में इस पॉइंट को थोड़ा और स्ट्रेंथन करके, अपनी परसिस्टेंसी बढ़ा के या लैप्सेशन कम करके, अपने पॉलिसी धारकों को और अपने शेयर होल्डर्स को कितना ज्यादा प्रॉफिट कमाने का एक सॉलिड अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा मौका है. मेरे ख्याल से किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना बड़ा मौका नहीं है. सो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जहां पे मेरा दिली चाहता है कि LIC शायद दुनिया की नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन बने. ऑन प्रीमियम्स ऑल्सो, पॉलिसीज में तो है, जो संभव है अगले 8 से 10 साल में, अगर LIC मैनेजमेंट, LIC के डिस्ट्रीब्यूटर्स, डेवलपमेंट ऑफिसर्स सारे उस दिशा में काम करें. तो वेरी वेल सेड धीरज, बहुत ही वैल्यूएबल इंसाइट्स आपने बताए. सो धीरज, अगर अभी हम लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात करते हैं, व्हाट डू यू थिंक इज द फ्यूचर? वेल, देखिए, आज की तारीख में इंडिया का लाइफ इंश्योरेंस मार्केट ग्लोबली 10वें नंबर पे है एज ऑफ 2019. एज पर स्विस री मेरे पास 20 का भी डेटा नहीं है, बट वी आर द 10th लार्जेस्ट मार्केट. 1 साल पहले हम 12th लार्जेस्ट थे, और ये गलत है, क्योंकि हम दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो कायदे से हमारा लाइफ इंश्योरेंस मार्केट भी 5th लार्जेस्ट होना चाहिए. अग्रीड. फिलहाल हम 10th लार्जेस्ट हैं. यानी कि एक तरफ तो हम देखें कि ये खराब न्यूज है, पर दूसरी तरफ देखें तो वो IPL की तरह हमें डांस करना चाहिए, मौका, क्योंकि लोगों के पास पैसा है,
कहीं ना कहीं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स अभी शायद उतना विश्वास नहीं जगा पा रहे कि उस पैसे को हम लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अट्रैक्ट कर सकें। सो ये प्रेजेंट है, पर अगर हम फ्यूचर को देखें और एक्सपर्ट्स को सुने, जैसे लिम्रा मानता है, प्राइस वाटर हाउस कूपर एग्री करता है, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप सेज द सेम एंड प्रोबेबली मैकिन्जी, कि आने वाले करीब 12-13 सालों में इंडियन लाइफ इंश्योरेंस मार्केट दुनिया का चौथा सबसे बड़ा लाइफ इंश्योरेंस मार्केट हो जाएगा। और अगर वो होना है तो जैसे LIC के चेयरमैन सर ने, मिस्टर कुमार ने भी कहा कि आने वाले करीब 8-10 सालों में हम 12 से 15% की सालाना बढ़त लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में देख रहे हैं। सो हम 10th पोजीशन से 4th पोजीशन पे जाने के लिए हमें सालाना 14% की बढ़त चाहिए अप्रोक्सीमेटली। किसी भी एक बहुत बड़े सेक्टर में जो कि इतना एस्टैब्लिश्ड है जितना लाइफ इंश्योरेंस ऑलरेडी है इंडिया में, एनुअली 14% की ग्रोथ CAGR आना इज वेरी वेरी रेयर। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि आने वाले 10-12 साल शायद लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए इंडिया में एक गोल्डन पीरियड होने वाला है। साथ में ये भी कहूंगा कि इतनी बढ़त बिना डिस्ट्रप्शंस के नहीं आती, तो organizations will have to follow and adopt new practices so as to lead this disruption, क्योंकि disruption की आंधी में दो ही लोग होते हैं, एक वो जो इसे लाते हैं और दूसरा जो इसमें उखड़ जाते हैं। So I believe LIC will become one of the active ones and disruptors and swipe the market, and some of our leading companies in India का market share life insurance business में बहुत बढ़ेगा. It is the sunrise industry for next 10, 12, 13 years, maybe 15 years. Very well said, Dheeraj. So Dheeraj, अगर जब हम अब बात करते हैं LIC IPO को लेकर, do you feel LIC IPO is different, or how do you feel it is different compared to other IPOs? Well, different तो है ही, देखिए, क्योंकि मतलब इतना इंतजार कभी किसी IPO ने नहीं कराया। सो एक तो इसलिए डिफरेंट है, दूसरा शायद सबसे बड़ा IPO होने वाला है इंडिया का, इसलिए बड़ा डिफरेंट है, तीसरा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अभी तक इन्वेस्टर्स को शायद जाने अनजाने में शेयर मार्केट से दूर रखती थी, अब वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स को शेयर मार्केट की तरफ ला रही है, इसलिए बड़ा डिफरेंट है। बिकॉज मेरे ख्याल से आज से 6-7 महीने पहले हमारे देश में जितने डीमैट अकाउंट थे, LIC IPO के नाम से कम 2.5-3 करोड़ एक्स्ट्रा डीमैट अकाउंट खुलवाए जा चुके हैं। ये LIC वही संस्था है जो इक्विटी से, म्यूचुअल फंड से, जहां इसके एजेंट्स जो है वो अपने कॉमन कस्टमर्स को जनरली दूर रखते थे। they used to pull them into traditional policies, guarantees। अब यही ऑर्गेनाइजेशन जो है वो शेयर मार्केट की तरफ इन्वेस्टर्स को ला रही है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक it's a historical change which is happening in India. India is growing because हम ये कह सकते हैं ना, ये इक्विटी की तरफ जा रहे हो तो you're growing, so risk ज्यादा है but of course returns भी ज्यादा है। So it's a historic thing which is happening. This is really outstanding, Dheeraj. जो आपने बताया एक्चुअली बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। So धीरज, अगर इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना है, how should they go about doing it? Well, देखिए, इसमें बड़ा मुश्किल है ये कहना, बिकॉज अलग अलग लोग यहाँ बहुत अलग अलग सलाह देते हैं। मैं तो फंडामेंटल आदमी हूँ, तो एक ही सलाह दूंगा, they should invest in equity for a very long period of time. Same with LIC, क्योंकि देखिए फंडामेंटली LIC एज एन ऑर्गेनाइजेशन बहुत वेल फाउंडेड है, बहुत वेल फाउंडेड है। अगर हम देखें कि पॉलिसी धारक का जो निवेश है LIC में, शायद दुनिया की किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन जितना ही या बल्कि उससे भी कुछ ज्यादा सुरक्षित है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कह चुकी हैं हर एक पॉलिसी धारक को सॉवरेन गारंटी। अब इतनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन का अगर IPO आ रहा है, तो शॉर्ट टर्म में तो हर IPO पे बड़े फैक्टर्स रहते हैं। जैसे आज की तारीख में यूक्रेन वॉर का फैक्टर है, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी रहेगी। इधर यूपी के इलेक्शंस हैं जो 10 मार्च को रिजल्ट्स आने वाले हैं, सो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी रहेगी। सो कुछ नहीं कहा जा सकता शॉर्ट टर्म में ये मतलब ऊंट किस करवट बैठेगा, बट आई थिंक इन द लॉन्ग रन, बिकॉज फंडामेंटली इतनी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है, इनके एम्बेडेड जो एसेट्स हैं वो इतने ज्यादा हैं, जिसका वैल्यूएशन लगा पाना, अभी जो लगाया गया कि 16,000 करोड़ होना चाहिए, वो भी मुझे लगता है ग्रॉस अंडर एस्टिमेशन, इससे कई गुना ज्यादा होना चाहिए। बिकॉज आप अगर योगक्षेम बिल्डिंग को देखें मरीन ड्राइव पे, तो उसकी बुक वैल्यू 1 रुपए है। सो आप समझ सकते हैं कि मतलब जो LIC के एक्चुअल एसेट्स, एंड देन इट्स अ ग्रोथ इंडस्ट्री। मतलब LIC जिस इंडस्ट्री में एक लीडिंग प्लेयर है with more than about 66% of total premiums, right? तो वहां पे ये मतलब शॉर्ट टर्म का कुछ कहा नहीं जा सकता, बिकॉज ये मार्केट के बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बट लॉन्ग टर्म इट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट फॉर पब्लिक, दैट इज माय बिलीफ।
वैसे भी आप इंडियन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं जनरली उन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं, चाहे वो ICICI हो, चाहे HDFC हो, चाहे SBI हो. So LIC is going to be another one, very good, maybe better than them, but only time will tell. But well, long term is the only strategy in equity market. That is what I suggest to retail investors. थैंक यू धीरज, क्योंकि ये जो था मेरा एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला था कि अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है LIC IPO में, देन शुड दे थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गेन्स? देखिए अभी वैसे मतलब इसमें बड़ा अजीब सा सीन है, बिकॉज ये 11 तारीख या 10 तारीख से होपफुली एज ऑफ नाउ द डेट डिसाइडेड इज 10th to 13th or 14th March that this IPO will come and people will get an opportunity to invest. तब तक शायद यूपी इलेक्शंस क्लियर हो जाएं, तब तक शायद यूक्रेन वाला मैटर सेटल हो जाए, शायद बाकी जो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं वो शेयर मार्केट में फेवरेबल हो जाएं, और शायद ये IPO तुरंत शॉर्ट टर्म में भी बहुत अच्छा रिटर्न दे दे. पर इसमें इतने सारे शायद हैं that the only thing I can say for certainty कि लॉन्ग टर्म बेटर है. बिल्कुल बिल्कुल. So धीरज, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर यू. LIC is considered to be prestigious for all Indians. क्या आप आपकी कोई एक स्पेशल एडवाइस देना चाहते हैं व्यूअर्स को, ऑडियंस को, कंज्यूमर्स ऑफ इंडिया को? मैं यही एडवाइस दूंगा that everybody should be adequately insured, right? You understand? Adequacy means कि क्या आपका इंश्योरेंस इतना है कि गॉड फॉरबिड अगर कोई दुर्घटना घट जाए तो हम अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाएंगे. बिल्कुल. क्या उस पैसे को अगर बैंक में रख दें तो उसके आज की तारीख में उसके ब्याज से अगले 20-25 सालों तक हमारा जो स्टैंडर्ड इंक्लूडिंग रेंट, इंक्लूडिंग एवरी एक्सपेंस दैट वी डू, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन हो पाएगा? एंड दैट इज सैडली बहुत कम है. So the only advice I have as an insurance professional is that people should also look at being adequately insured. ये public को advice है. The advice to the life insurance professionals is that we should become better professionals, ताकि हम diagnose करके लोगों को बता सकें adequacy क्या है. और ये सिर्फ एक life insurance की हम बात कर रहे हैं. अगर हम life insurance का एक और पहलू देखें, which is the risk of covering the risk of living too long, यानी pension adequacy, वहां बड़ा बुरा हाल है. मतलब आज की तारीख में एज पर ओएसएस रिपोर्ट हम ये कह सकते हैं कि 97% ऑफ इंडियंस जिनका हाथ रिटायरमेंट से पहले ऐसे होता है, रिटायरमेंट के बाद ऐसे हो जाने वाला है. और अगर लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने पेंशन एडिक्वेसी पे काम नहीं किया तो आने वाले 30-35 सालों में हमारे यहाँ हम बहुत ज्यादा बुजुर्ग देखेंगे. आज भी आप देखिए तो आपके एक ATM में जो गार्ड होते हैं वो जनरली 60-65 साल से ज्यादा के होते हैं. उनसे कभी पूछिएगा वो क्यों काम कर रहे हैं. वो कहती हैं कि सर क्या करें, पेट के लिए करना पड़ता है, बिकॉज कोई सही समय पे उनके पास नहीं गया था और पेंशन एडिक्वेसी पे काम नहीं किया था. आई थिंक दैट्स अनदर अपॉर्चुनिटी जहाँ पे हमें एज लाइफ इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स सीखना चाहिए कि कैसे लोगों को एडिक्वेसी के लिए एडवाइस किया जाए. To investors, my advice is long term. LIC IPO is going to be great. Invest in life insurance industry. It is going to be a fantastic industry in coming next 15 years. यही बस मैं कहना चाहूँगा. So beautifully said, धीरज. आपने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया, it really touched my heart. Especially आपने जब elderly people का जो example लिया, it is so very adequate. So on that note, धीरज, I would like to thank you once again for coming to my podcast today, showing your willingness to share such valuable insights. बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर. Thank you, Namita. It was pleasure interacting with you, and I hope people will be able to take better decisions with just a little bit of thank you very much. We will keep our fingers crossed. और आपने जो एडवाइस दी है ये बहुत ही वैल्यूएबल है. आई एम श्योर कि व्यूअर्स को, ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा. थैंक यू वंस अगेन धीरज. Thank you, Namita. Thank you for the opportunity. Good day. चलिए बात करते हैं about कुछ interesting facts about LIC. LIC is the oldest, largest and most profitable life insurance company in India. LIC building was the tallest building in India when it was inaugurated in 1959. If LIC was a country, then it would be the 5th largest country in the world by population. LIC has been present in the life insurance sector for 59 years. That's almost 6 decades. Yogakshemam Vahamyaham. The slogan of LIC is derived from Bhagavad Gita, which means your welfare is our responsibility. क्या आपको पता है famous actors like Abhishek Bachchan and Amrish Puri were also LIC agents? Bollywood living agent Amitabh Bachchan and LIC came together for the first time to initiate Urja event to tap solar energy to light up unelectrified homes. LIC has global operations spanning in over 7 countries: Fiji and London, Sri Lanka, Nepal, Bahrain and Saudi Arabia. LIC has contributed
around 5 crores in nation building activities. LIC is formed by merging 245 insurance companies. Can you imagine this? I have with me Amber Arundekar, who is a sales coach, an entrepreneurship trainer, a business consultant, a mental toughness coach to Ranji Trophy cricketers, an MC at corporate events, and also a Hindi poet. He also worked with Egon Relicare, life insurance as training head for West Zone. चलिए जानते हैं कि अंबर के क्या व्यूज है अबाउट LIC IPO। नमस्ते अंबर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ नमिता जी, आप कैसे हैं? हाँ जी, बहुत अच्छी हूँ। How is your Sunday going? How is everybody in your family? Everybody in the family fine। आज के रविवार की जो शुरुआत थी बड़ी अच्छी हुई। छोटे ब्रदर के यहाँ सत्यनारायण की पूजा थी, so it was a very fantastic day spent till date। Wonderful। वैसे बुरा ना माने तो अंबर आपसे एक बात पूछूं? Please। आप एक हिंदी पोएट हो, राइट? आपके बात करने के तरीके में भी वो समझ आ जाता है। शुक्रिया। हो सकता है आपसे आज थोड़ी सी एक पोएम बुलवा लूं? प्लीज, मुझे अच्छा लगेगा। वैसे हिंदी मेरी बड़ी पसंदीदा भाषा भी है और हिंदी में कभी कभी उर्दू लफ्जों का इस्तेमाल भी आ जाता है अमूमन। वाओ, लेकिन आप मुझे आज मजा आने वाला है आपको सुनने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज एक अच्छे हिंदी भाषी व्यक्ति से आप लोगों की मुलाकात कराएं। So on that note, Amber, I would like to thank you for your willingness to come to my podcast, to our channel and to our world of audience. Welcome over here. Thank you so much। आपके सारे ऑडियंस को भी मेरा नमस्कार। अंबर, मैंने आपके बारे में एक सेपरेट वीडियो शूट की है ऑलरेडी, जहां पर मैंने आपके सिग्निफिकेंट क्रेडेंशियल्स के बारे में ऑलरेडी थोड़ा बहुत बता दिया है, पर मैं चाहती हूँ कि आप भी आपके बारे में कुछ बताएं। एनीथिंग, मे बी अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर जर्नी, दैट विल गिव अ नाइस फ्लेवर ऑफ योर लाइफ टू आवर ऑडियंस। देखिए नमिता जी, एक साधारण मध्यम वर्गीय महाराष्ट्रियन परिवार में मैंने जन्म लिया। इंदौर मेरी जन्मभूमि भी है और जिंदगी के करियर के लगभग पहले 5 साल तक ये मेरी कर्मभूमि भी रही। मैंने अपने करियर की शुरुआत RPG सेल्युलर फोन्स नाम के एक सेल्युलर टेलीफोनी ऑपरेटर के साथ इंदौर में की थी। उसके बाद मुझे मोनसेंटो नाम की एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ छत्तीसगढ़ रायपुर में काम करने का मौका मिला। मोनसेंटो बहुत अच्छी यात्रा थी, लेकिन जैसा कहते हैं ना, उस दौरान IT अपना सर उठा रहा था और IT की जो बहार थी, मुझे ऐसा लगा कि मैं इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के मुकाबले IT जो इंटरनेशनल या अंतरराष्ट्रीय स्तर पे काम हो रहा था, मुझे लगा मुझे IT में जाना है। तो मैंने मोनसेंटो से छोड़कर IT में जाने की चेष्टा की। इनफोकस सॉल्यूशंस नाम की एक कंपनी में इंदौर आया। उसके बाद कुछ ऐसी दिलचस्प बात घटी कि मुझे मोनसेंटो के दौरान कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह करने का भी मौका मिला था। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये काम वो है जो मैं कर सकता हूँ। उसके बाद मैं जब इंदौर बेस्ड एक IT कंपनी है बैशमास्टर सॉफ्टवेयर, वहां काम कर रहा था और मुझे मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस नाम की कंपनी के साथ जुड़ने का मौका मिला। और उसके पहले मैं कभी समझ नहीं पाता था कि 2 इंश्योरेंस वाले लोग मिलते हैं तो सिर्फ इंश्योरेंस की ही बातें क्यों करते हैं। लेकिन 5 साल मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ रहने के बाद आप ये कह सकते हैं कि मेरा धर्म परिवर्तन हुआ। अब मैं इंश्योरेंस को अपना धर्म मानता हूँ। Very honestly telling you, I consider insurance to be my religion. When my wife is not around, I can very safely say that insurance happens to be the first love. और इंश्योरेंस के साथ साथ ट्रेनिंग से रूबरू होने का मौका मिला और कई सारी जिंदगियों को छूने का मौका मिला। नमिता जी, ट्रेनिंग के उस पहले पायदान पर एक चीज मुझे ऐसी लगी कि मेरे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और कई बार मुझे ऐसा भी लगता था कि क्या मैं उनके इस प्यार का हकदार हूं। और उनके प्यार का हकदार होने के लिए मैंने अपने आप में कई सारे परिवर्तन करने शुरू किए और जिंदगी ने वहां से मोड़ लिया। फिर मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ में एक ब्रांच ट्रेनिंग मैनेजर से शुरू हुई जर्नी 2003 से 2010 में एगॉन रेलिगेयर नाम की कंपनी तक पहुंची, जहां मैं वेस्ट जोन हेड करता था ट्रेनिंग में। उसके बाद ऐसा लगा कि भाई मैं कब तक लोगों को ये बताते रहूंगा कि आप ये कर सकते हैं और आप ये कर सकते हैं और आप में ये क्षमता है। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई मुझे भी अब बंधनों से बाहर होकर अपना कुछ काम शुरू करना चाहिए। तो आज मैं आपके सामने हूं। पिछले 12 सालों से अपना काम कर रहा हूं। इंश्योरेंस डेफिनेटली मेरे ये कह सकता हूं कि मेरे हिस्से का सबसे मेरे जो भी काम है उनका बड़ा हिस्सा इंश्योरेंस से आता था आरंभ में। लेकिन अब इंश्योरेंस के बाद ट्रैक्टर्स के बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बाद इंजीनियरिंग के बाद ऑटोमोबाइल, फार्मा,
ऐसी कई सारी अलग अलग कंपनीज के साथ आजकल काम कर रहा हूँ। नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन और छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के कई यंग क्रिकेटर्स के साथ काम करने का मौका मिला पिछले 9 सालों से, क्योंकि क्रिकेट मेरा पैशन भी था, पोएट्री भी पैशन है, तो कुछ कवि सम्मेलन भी कभी कभी कर लेता हूँ। और बस जिंदगी ऐसे गुजर रही है और कई सारे दिलचस्प मुकाम इस राह पे मिले, जिसमें से एक दिलचस्प मुकाम आज है। आपने एक बहुत ही कलरफुल लाइफ जी है। इनफैक्ट यू आर मल्टी टैलेंटेड अंबर। मुझे पता नहीं नमिता जी, मैं एक कार्यक्रम के दौरान जब सुभाष चंद्रा साहब से मुलाकात हुई थी इलाहाबाद में, तो उन्होंने मुझे कहा था कि अंबर, किसी एक विधा में निपुण होने के लिए आपको कई सारी ऐसी विधाएं छोड़नी पड़ती हैं जिसमें आप निपुण हो सकते थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंश्योरेंस मेरा रिलीजन है, पोएट्री और क्रिकेट ये दोनों मेरा पैशन है, और ट्रेनिंग मेरा प्रोफेशन है। तो इनमें से ये मेरे परिवार के सारे सदस्य हैं, इनमें से किसी एक को भी छोड़ना मेरे लिए शायद नामुमकिन ना हो। तो बस इसी उद्देश्य के साथ मुझे ऐसा लगता है कि प्यार ऐसी चीज है जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। तो इन चारों प्रोफेशंस में मेरा प्यार बटा हुआ है। So beautifully said, अंबर। So अंबर, आप जैसे कि आपने कहा कि आपका पहला प्यार इंश्योरेंस रहा है, क्या आप LIC के बारे में कुछ बता सकते हैं एज अ कंपनी? ऐसे कुछ देखिए, मैं आपको बताऊं नमिता, मेरी इंश्योरेंस क्षेत्र में पैदाइश और परवरिश दोनों प्राइवेट क्षेत्र की, निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों में हुई। मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ और एगॉन डेलीगेयर, मैंने जो 10 साल बीमे में बिताए वो इन दोनों कंपनियों में बिताए। बीच में बस 1 साल का छोटा सा रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक स्प्रिंट था। और तमाम उम्र मुझे एक ट्रेनर के तौर पर हमारे सेल्स वाले सारे प्रोफेशनल्स को ये समझाना पड़ता था कि भाई हम LIC से बेहतर कैसे हैं। लेकिन जब एगॉन रेलिगेयर में मुझे मेरे एक सीनियर थे मिस्टर सुनील रैना, जो एक्स LIC एम्प्लॉय थे, इनसे बात करने का मौका मिला। मैं बात कर रहा हूँ 2010 की। तब से लेकर अब तक शायद परिस्थितियां 100% बदली होंगी, लेकिन मैंने सुनील से कहा कि सुनील, LIC कितनी बड़ी है भाई। हम लोग उस वक्त 100-125 करोड़ का प्रीमियम इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे एगॉन में, क्योंकि हमारी कंपनी नई ही थी। मैंने उसे प्रोजेक्ट स्टेज में ज्वाइन किया था, तो हमें भी मार्केट में आए ज्यादा दिन नहीं हुए थे। लेकिन सुनील ने ये कहा मुझसे कि अंबर, लगभग 16 करोड़ पॉलिसियां LIC की एनफोर्स्ड है, और LIC की मैक्सिमम पॉलिसीज क्वार्टरली मोड में होती हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि लगभग 60 करोड़ प्रीमियम इंटीमेशन नोटिसेस LIC बेचती है। उस जमाने में प्रीमियम इंटीमेशन नोटिस का पोस्टेज का चार्ज 5 रुपया लगता था। तो लगभग 300 करोड़ रुपए LIC सिर्फ अपने प्रीमियम इंटीमेशन नोटिसेस के टिकटिंग पे खर्च किया करती थी। जिस जमाने में कई सारी प्राइवेट कंपनियां 100 करोड़ रुपए का प्रीमियम कलेक्ट करने की को अपना एनुअल गोल मान के चला करती थी, उस दौरान LIC 300 करोड़ रुपए पोस्टेज पे खर्च करती थी। तो इससे मुझे अंदाजा लगा कि LIC कितना मेहनत है। देखिए, मैं ये कह सकता हूं कि LIC को आप एक कंपनी के तौर पे मत देखिए। LIC भारतीय जीवन शैली का अब एक हिस्सा बन चुका है। हो सकता है आपने पॉलिसी ICICI प्रूडेंशियल या मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ या HDFC या बिरला से ली हो, लेकिन आप लोगों से बात करते वक्त यही कहते हैं कि हाँ यार, इस महीने LIC ले ली एक। तो LIC बिकम अ जेनेरिक ब्रांड। और इकोनॉमिक टाइम्स जो सर्वे करता है उसका लगातार कई वर्षों से एक सुपर ब्रांड है। तो मेरे ख्याल से अगर मैं कंपनीज की बात करूं, तो मैं कंपनी के तौर पे बात करूं तो LIC के एसेट्स बहुत ह्यूज हैं। रिलायंस के मुकाबले अगर हम बात करें तो LIC के जो टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है वो एटलीस्ट 50 टाइम्स ज्यादा है, या और ज्यादा भी हो सकते हैं। एग्जैक्ट नंबर्स मैं आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करता हूं। तो LIC इज ह्यूज, एंड आई थिंक LIC को आप एक कंपनी के तौर पे ना देखकर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के एक बड़े हिस्से के तौर पे देखें तो ज्यादा अच्छा होगा। ट्रूली एक्सेप्शनल अंबर। सो अंबर, आज का हमारा जो पॉडकास्ट जो टॉपिक है, इट इज ऑन LIC IPO। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि LIC की जो IPO है ये बाकी IPOs की कंपेयर टू अलग है? जी हाँ, बाकी IPOs के मुकाबले निश्चित तौर पर नमिता जी अलग है। देखिए, मैं इसे अलग बेसिकली 3 हिस्सों में से बांटकर आपको बताना चाहता हूं कि अलग क्यों है और कैसे है। अगर आप साइज की बात करें तो लगभग 31 करोड़ 62 लाख 50,000 शेयर्स LIC इशू कर रही है प्लान करने का। 31 करोड़ 62 lakhs 49,885 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच। एक्सपर्ट से कहते हैं कि LIC का वैल्यूएशन जो वो है वो कहीं भी
10.6 लाख करोड़ रुपीस से 35.2 लाख करोड़ रुपीस तक हो सकता है। और गवर्नमेंट इसमें से अभी 5% के आसपास स्टेक डाइल्यूट करने के बारे में सोच रही है, ऑफलोड करने के बारे में सोच रही है। तो लगभग 60,000 करोड़ रुपए का ये आईपीओ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके पहले 2021 में पेटीएम का 18,300 करोड़ का आईपीओ था, कोल इंडिया लिमिटेड का 2017 में 15,199 करोड़ था, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का 2017 में 11,257 करोड़ रुपए का आईपीओ था, और एसबीआई कार्ड्स का 10,341 करोड़ का आईपीओ था। अभी तक ये हिंदुस्तान के 5 सबसे बड़े आईपीओ रहे, लेकिन एलआईसी इन सब से लगभग 4 गुना, कम से कम 4 गुना बड़ा आईपीओ है। तो ये डिफरेंस तो है ही। This is truly wonderful. So, अंबर, आपको क्या लगता है इन्वेस्टर्स ने इसमें इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए? देखिए, मैं इन्वेस्टमेंट तो वही बड़ा सिंपल सा तरीका है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप डीमैट अकाउंट के थ्रू इस शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मुझे ऐसी उम्मीद है। देखिए, सिर्फ इसलिए भी मेरी बातें कई लोगों को बड़ी बायस लग सकती है क्योंकि मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री का, जैसा मैंने कहा, मेरी इंश्योरेंस में एक धर्म की तरह आस्था है। तो मैं ये कह सकता हूं कि आप जैसे किसी और इक्विटी शेयर के लिए अप्लाई करते हैं वैसे ही कीजिएगा। अगर ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकें तो ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई कीजिएगा। अगर प्राइस बैंड कोई एलआईसी डिक्लेयर करती है तो टॉप प्राइस बैंड पे अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि मेरी मान्यताओं के हिसाब से ये इशू ट्रेमेंडसली ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। तो अगर आप प्राइस बैंड में टॉप प्राइस लेवल पे अप्लाई करते हैं तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस में आपको शेयर अलॉट होने की संभावना बढ़ जाती है। हाँ, इसमें एक और स्पेशल कैटेगरी है, आप मत भूलिएगा कि अगर आप एलआईसी के पॉलिसी होल्डर हैं तो इस पब्लिक इशू में, इस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में जो 35% कोटा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रखा गया है, उसका 10% कोटा इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स के लिए रखा गया है जिनके पास एलआईसी की इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो अगर आप इस कोटा में अप्लाई करते हैं तो शायद आपको ये शेयर मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। नमिता जी, That's remarkable, Amber. Thank you so much for sharing that valuable insight with us. Thank you. Pleasure. So, Amber, अगर इन्वेस्टर्स अगर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो उन्हें किस चीज के बारे में सोचना चाहिए? क्या उन्हें शॉर्ट टर्म गेन्स के बारे में सोचना चाहिए या लॉन्ग टर्म गेन्स के बारे में सोचना चाहिए? देखिए नमिता जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जब भी आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करें तो ये डायकोटमी, ये कैश 22 आपके सामने हमेशा रहेगा कि आप शॉर्ट टर्म गेन के बारे में सोचें या लॉन्ग टर्म गेन के बारे में सोचें। शॉर्ट टर्म गेन को मैं स्पेक्यूलेटिव मानता हूं, और आपने देखा होगा अभी पारस डिफेंस का आईपीओ आया, बहुत तेजी से बढ़ा, देन उसमें थोड़ा सा स्टेबलाइज हुआ शेयर। पेटीएम का आईपीओ आया और उसमें तो स्टेबलाइजेशन के मुकाबले आप डाउनफॉल कह सकते हैं, वो भी हुआ। तो बेशक आप शॉर्ट टर्म में भी फायदा देख सकते हैं, लेकिन मेरा सारे इन्वेस्टर्स के लिए रिकमेंडेशन ये रहेगा कि शॉर्ट टर्म में अगर फायदा हो गया तो ये आपके लिए एक स्पेक्युलेटिव गेन है, लेकिन आपका पर्पस जो है इस इन्वेस्टमेंट में वो शॉर्ट टर्म फायदे का नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, एलआईसी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आपने शॉर्ट टर्म फायदे के लिए कुछ बेच दिया तो शायद लॉन्ग टर्म में आपको पछताना पड़े। तो अगर कोई आदमी बड़े विशुद्ध रूप से किसी शॉर्ट टर्म गेन के पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट कर रहा है, मैं कह सकता हूं कि शॉर्ट टर्म फायदा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये शेयर बियॉन्ड कंपेयर होगा, क्योंकि एलआईसी हिंदुस्तान की रगों में बहता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से सोच रहे होंगे तो दिस इज अ बेटर ऑप्शन, बट शॉर्ट टर्म गेन को नकारा नहीं जा सकता। वेरी वेल सेड अंबर। सो अंबर, अभी और भी बहुत सारे आईपीओस है जो अपकमिंग है इस साल के लिए, आप उनके बारे में कुछ बताना चाहते हैं? देखिए, मैं नमिता जी बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट को फॉलो करने वाला आदमी तो नहीं हूं, लेकिन मैं आपको एक और बात बता सकता हूं जो मेरा कुछ स्टडी छोटा मोटा मैं कभी कभी करते रहता हूं एक ट्रेनर होने के नाते से। तो क्या हुआ है, पिछले 2 सालों में इस कोविड ने जिस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इम्पैक्ट किया है और इम्पेयर भी किया है, कई सारे बिजनेसेस जैसे रेंटल्स के बिजनेसेस या हॉस्टल्स के या होटल्स के, इन बिजनेसेस पे खासी मार हुई है। और कई सारे लोगों ने जिन्होंने जो रियल एस्टेट को एक बहुत अमेजिंग इन्वेस्टमेंट की तरह देखते थे, मेरे ख्याल से दे हैड टू रिकंसीडर देयर ऑप्शन। तो उसका नतीजा ये हुआ है मैम कि पिछले 2 सालों में लगभग 5 करोड़ नए डीमैट अकाउंट्स खोले गए हैं हिंदुस्तान में। और अगर आप ये मान के चलें कि ये एक आदमी, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मेरा बेटा ही इज अ यंग इंजीनियर, जस्ट स्टार्टेड अर्निंग, उसने भी पिछले 2 सालों में लगभग 2.5-3 लाख रुपया इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किया है। अब अगर ये 5.5 करोड़ लोग अगर 1-1 लाख रुपए भी इन्वेस्ट करते हैं तो नमिता जी हम लोग 5 लाख करोड़ रुपए की नई रिटेल इन्वेस्टमेंट्स की तरफ देख रहे हैं।
और यही वजह है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी आईपीओज आएंगे उन आईपीओज के लिए ये बड़ा सुनहरा मौका है. इंडियन मार्केट्स आर अप फॉर ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स बाय द रिटेल सेगमेंट एंड दैट इज द बिगेस्ट डील. हालांकि अगर इस मौजूदा दौर की, अभी के करंट सिचुएशन की मैं बात करूं तो जो रशिया और यूक्रेन क्राइसिस है उसने टेम्परली स्टॉक मार्केट्स को इंपैक्ट किया हुआ है ग्लोबली. अगर ये ज्यादा एस्केलेट नहीं होता तो आप देखिएगा कि हर आईपीओ की जो आने वाले कल में इंडियन मार्केट्स में आने वाले हैं, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर देम. और अगर आप इन्वेस्टर्स का भरोसा जीत पाए तो मेरे ख्याल से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता. एब्सोल्युटली अग्री अंबर. सो अंबर, अभी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए. LIC इंडिया में बहुत प्रेस्टिजियस माना जाता है. आप अपने अंदाज में कोई एक स्पेशल एडवाइस या मैसेज देना चाहते हैं व्यूअर्स को, ऑडियंस को, या तो कंज्यूमर्स ऑफ इंडिया को? अगर एक छोटी सी पोएट्री भी हो जाए तो मजा आ जाएगा. देखिए, मैं कोशिश करता हूं कि मेरी पोएट्री कोई ऐसी हो जो आपको प्रासंगिक लगे, लेकिन मैं अगर इस आईपीओ की कुछ खास बातें आपको बताना चाहूं LIC के पर्टिकुलर LIC के बारे में, तो LIC के पास लगभग 286 मिलियन पॉलिसीज हैं नमिता जी. 1,15,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज और 1.34 मिलियन से ज्यादा इंडिविजुअल एजेंट्स. करंटली 64% मार्केट शेयर है LIC का इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम और 66.2% इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज. LIC टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से ज्यादा एसेट मैनेज करता है. दे आर अराउंड $528 बिलियन. सो इंडियन जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है टोटल, उससे ज्यादा LIC की AUM है. और जो टोटल AUM है वो सारे दूसरे इंश्योरेंस कंपनी से 3.3 टाइम्स ज्यादा भी है. तो लगभग आप ये मान के चल सकते हैं कि इंडियन इन्वेस्टर्स, मुझे लगता है कि LIC के इस आईपीओ में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बिल्डिंग का काम जरूर कर सकते हैं. और देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आप जहां उम्मीदें लगाते हैं शायद वहां आपको वैसा सिला ना मिले. मतलब जैसा मैंने आपसे कहा कि LIC का आईपीओ तो बहुत अमेजिंग है ही है. पॉसिबली अगर ये इशू जो वॉर विच इज गोइंग ऑन, अगर ये एस्केलेट होता है तो शायद टाइमिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए. लेकिन मैं लोगों को सिर्फ ये कहना चाहूंगा, दो मेरी बड़ी पसंदीदा पंक्तियां हैं. एक शायर है, वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं कि हर तरफ खुश्क मिले जमीन, प्यासे जो चल पड़े हैं तो दरिया भी आएगा. और ये LIC के आईपीओ के बारे में नहीं कहता हूं मैं इक्विटी मार्केट या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कहता हूं कि भाई आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत कीजिए. एज दे से, टाइमिंग द मार्केट इज नॉट द राइट आइडिया, टाइम इन द मार्केट इज द राइट आइडिया. और मेरे ख्याल से हमारे देश का, हमारे कॉर्पोरेशन का और इंश्योरेंस इंडस्ट्री का एज अ होल हिंदुस्तान में बहुत अमेजिंग फ्यूचर है. आप LIC के आईपीओ में इन्वेस्ट करें या ना करें, ये आपका चॉइस हो सकता है. लेकिन नमिता जी, आपके शो के माध्यम से मैं हर ब्रेड विनर को, हर परिवार के उस कर्ता को जो उसके परिवार के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का फलक्रम है, उनके वित्तीय सुरक्षा का आधार है, उससे जरूर कहूंगा LIC का शेयर ले या ना लें, लेकिन LIC की या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी लेके अपनी फैमिली को जरूर सुरक्षित कीजिएगा. तो मेरा मैसेज ये जरूर है that if you love your family, make sure that you have right health insurance and right life insurance for sure. Buy it from anybody you love. Thank you so very much for this enriching information, Amber. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. And on that note, again, I would like to say thank you for your willingness to come to my podcast today. बहुत अच्छा लगा. मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी साथ में पहली पॉडकास्ट थी, लेकिन भगवान करे आखिरी साथ में ना हो. हम फिर जरूर मिलेंगे. थैंक्स अ टन. आपके सारे श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार और जय हिंद. LIC का कोई कंपटीशन नहीं रहा है अब तक since 44 years. The government guarantees your claim amount. LIC shares 95% of the profit. LIC biggest institutional investor है इंडिया की. LIC has 15% stake in ITC and L&T. LIC spends 5.5% of its premium as agent commission. ये सच में अच्छा अमाउंट है. LIC का ग्लोबल प्रेजेंस है. डू यू नो व्हाट इज द ब्रांड वैल्यू ऑफ LIC? LIC की ब्रांड वैल्यू 2021 में है $8655 मिलियन और BSI स्कोर है 84.1 out of 100. LIC is ranked as third strongest and 10th most valuable global insurance brand in 2021. What is global positioning of LIC?
LIC is ranked 5th globally in terms of the insurance premium. Do let me know आपको ये interesting facts कैसे लगे. Feel free to type out your comment in this video comment itself. तो यहाँ पर मैं अपने viewers को ये कहना चाहती हूँ कि अभी तक हमने जो views सुने वो एक्सपर्ट से सुने, वो एक्सपर्ट जिनकी ग्लोबल रीच है, वो एक्सपर्ट जिनकी पैन इंडिया रीच है, और अब हम बात करते हैं एक LIC एजेंट से जिनकी रीच है वन सिटी की. I have with me Arvind Prabhu, who is into technology, business transformation, and insurance. He provides structured and simple solutions for investment, insurance, tax planning, and estate planning. He is certified licensed in insurance and MDRT 2021. He is an expert in strategic IT programs, digital transformation, and adopting emerging technologies. चलिए बात करते हैं अरविंद से और जानते हैं उनके व्यूज क्या है about LIC IPO. नमस्ते अरविंद जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया नमिता जी. Thank you Arvind for coming to my podcast, to my channel and to our world of audience. My pleasure. So Arvind, हमारे आज के जो पॉडकास्ट का जो टॉपिक है वो LIC IPO को लेकर है, पर जिसके पहले हम एक्चुअली ये टॉपिक स्टार्ट करें, मैं जानना चाहती हूँ कि आपका LIC के साथ क्या एसोसिएशन रहा है? एक्चुअली नमिता, मेरी मम्मी LIC में थी. She joined as an operator and then she got into HR and admin department. So as a 4-year-old also I have gone to Yogakshama and I have really enjoyed that office. And बचपन में तो you can have a lot of fun. And I have been to some branches. थोड़े branches में मैं देखा है, बहुत cordial kind of environment रहता है, अच्छा रहता है. So at that time I did engineering. अभी उसके बाद with my private limited I have become an agent. So मेरा ये second inning relation है with LIC. Of course policy holder तो हम लोग पहले से ही है ही. तो that's my multiple associations with LIC. Beautiful Arvind. So Arvind, अभी जब LIC IPO आ रहा है तो उसके लिए आपकी फीलिंग्स क्या है, आपके रिएक्शंस क्या है? मुझे तो बहुत उम्मीद है और ये IPO मैंने एक्चुअली 1994 से देखा हुआ है. सो ये सबके लिए एक वेल्थ क्रिएशन का एक बहुत अच्छा और आसान तरीका है. एंड हमारा जब ये IT कंपनी का IPO हुआ था तो सब एम्प्लॉइज का बहुत वेल्थ क्रिएट हुआ था. तो मुझे और भी लगता है कि ये IPO आने से थोड़ा और सिस्टम ऑयल्ड हो जाएगा थोड़ा एंड ये कैसा है, ये बहुत ही प्रेस्टिजियस IPO है इंडिया के लिए भी और पूरा वर्ल्ड भी देख रहा है. एंड आई एम श्योर कि इसके बाद थोड़ा चुस्ती आ जाएगा और सिस्टम में टेक्नोलॉजी आ जाएगा एंड बाहर के लोग के साथ कंपटीशन बढ़ेगा. सो मेरा तो ऐसा है कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन होने का ये एक बहुत बड़ा अच्छा इवेंट, हम लोग भी सब लोग सुधर जाएंगे. So what have you planned for next few days? तो जब से ये सुना है, समझो ना अभी 1 साल से तो है ये ऐसा IPO जाएगा ऐसा, और वो पिक्चर क्लियर होते जाता है एज द डेज पास बाय. तो हम लोगों का एजेंट लोग का ये काम है कि मेरा जो कस्टमर है उनका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो जिसको अप्लाई करना है. तो मैं एक स्ट्रेटेजी बनाया है कि बहुत लोगों को पहले तो बहुत लोग को अवेयर करना है कि IPO क्या है. बहुत सारे मेरे कस्टमर यंग लोग हैं, उनको पता भी नहीं है IPO क्या होता है. ओके, क्रिप्टो वाले लोग हैं तो उनको समझाना पड़ता है कि देखो ये भी अच्छा वेल्थ क्रिएशन का मैकेनिज्म है और ये रेगुलेटेड मैकेनिज्म है. तो ये फर्क उन लोगों को समझाना पड़ता है. फिर द बेसिक थिंग कि LIC बहुत कम्युनिकेटिव है. कुछ 50 दिनों से ही उन लोगों ने एड्स देना चालू कर दिया बहुत सारे न्यूज़पेपर में, रेडियो में, कि पैन लिंक करो, डीमैट क्रिएट करो, those kind of things. So as an agent I am making sure कि मेरे जितने भी कस्टमर सबका डेटा बराबर. बहुत सारे लोगों का मैंने देखा अभी रविंद्र स्पेलिंग में कुछ D और N मिसमैच है, तो मैं उन लोगों को बोला वो ठीक करा दो. Many people are not doing that. बहुत लोगों का कैसा हुआ है कि एड्रेस चेंज हो गया है या सो आई एम बेसिकली मेकिंग श्योर कि एलिजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए जिसको अप्लाई करना है. ओके, एंड आई एम मेकिंग श्योर दैट मोर पीपल को समझे कि अभी IPO आ रहा है. तो मैंने तो अभी हमारा तो बहुत एक्टिविटी है, बहुत लोगों को इंक्वायरीज ज्यादा हो गए हैं एंड वी हैव टू एक्चुअली हेल्प देम टू क्लोज इट बिफोर द
डेडलाइन, 28 Feb हमारा डेडलाइन। Absolutely right. So Arvind, as an LIC agent, क्या आप कोई एक स्पेशल एडवाइस देना चाहेंगे इन्वेस्टर्स को या इवन व्यूअर्स एंड ऑडियंस हमारे जो पॉडकास्ट के हैं उनको? एक तो अभी मैं जैसे एजेंट हूँ सिर्फ LIC का, सिर्फ LIC जान के भी शायद मैं कस्टमर की सर्विस नहीं कर सकूंगा। एंड स्पेशली विद LIC गोइंग टू IPO, हर एक एजेंट को इंश्योरेंस के अलावा मार्केट का भी अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, डीमैट अकाउंट्स का अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, क्योंकि कस्टमर को हम लोगों को ये सर्विस देना ही पड़ेगा। एंड सो एक तो एडवाइस एजेंट्स के लिए है कि हम लोगों को थोड़ा ब्रॉड सोचना पड़ेगा अभी। एंड दैट इज व्हाई मेरा टर्मिनोलॉजी है इंश्योरेंस एंड वेल्थ इंजीनियर, बिकॉज इंश्योरेंस तो ठीक है बट पीपल ऑल्सो वांट वेल्थ टू बी क्रिएटेड। जो काम कर रहे हैं उसको लगता है कि एंड में मेरा एक अच्छा बंगला हो जाए या जो भी है, पीपल आर वर्किंग उसके लिए काम कर। सेकेंड इज वी आर नॉट रियली एंटाइटल्ड, बट हर LIC एम्प्लॉय से मेरा रिक्वेस्ट कि ये IPO का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाए, बिकॉज आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस कि IPO से मेरा वेल्थ क्रिएशन हुआ है जब मेरा कंपनी का हुआ था। तो हर एम्प्लॉय से मैं बोलता हूँ कि भाई जोश में कर दो, क्योंकि उनको 3 कोटा अवेलेबल। एंड फॉर ऑल द रिटेल इन्वेस्टर्स मेरा एक सबसे बड़ा एडवाइस ये है कि पहले चेक करो कि आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया है क्या, पहले चेक करो कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस है क्या, पहले चेक करो कि आपने अपना जो प्लिंथ लेवल है गारंटीड रिटर्न्स का आपने कुछ व्यवस्था प्रबंध फैसिलिटी किया है क्या, फिर ये मीडियम रिस्क में चले जाओ। बिकॉज everyone, even new investor, need to know that equity market is a risk market, मतलब market can go up and down। तो पहले मैंने मेरा इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और गारंटीड रिटर्न सेट किया है, तो फिर इसमें बेझिझक कूदो। दैट इज माय शॉर्ट एंड स्वीट एडवाइस। थैंक यू सो वेरी मच अरविंद। आप एक LIC एजेंट है तो आपके पर्सपेक्टिव जानना बहुत जरूरी था कि आपके एंड पर क्या चल रहा है, क्या चैलेंजेस। ये जो LIC है ये बहुत बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है और एक एजेंट इज रिप्रेजेंटिंग वन नोड ऑफ वन ब्रांच ऑफ दिस होल कल्प वृक्ष। तो ये बट हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव रहता है। सो दिस इज आई जस्ट शेयर्ड मेरा पर्सपेक्टिव। आपने बोलते बोलते याद आया, बहुत लोगों ने मुझे कॉल किया है और बोला है कि इसका लिस्टिंग गेन कितना होगा, इसका ये कितना होगा, ये कितना होगा। सो LIC हमेशा एक लॉन्ग टर्म होराइजन वाला ही एक व्हीकल है। तो माय अदर रिक्वेस्ट टू मेनी पीपल लाइक मी ओनली, एकदम शॉर्ट टर्म मत सोचो, अच्छा से रहो, और ये एसेट है, अपना पूरा फैमिली के लिए एसेट है। तो ऐसा मेरा पर्सनल व्यू है। Very well said, Arvind. So Arvind, thanks a lot once again for your willingness to come to my podcast and to share the valuable insights. It's a pleasure to know you. Yeah, thank you. Yeah, thank you.